ان کا رہنما بنا، اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں یشوع کی کتاب بتاتی ہے۔ پھر ہمیں اس کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ موسیٰ کی موت کے بعد خدا کے چنیدہ شخص کی حیثیت سے بنی اسرائیل کا یہ قائد بنا۔ بنی اسرائیل قوم کا یہ کیا بنا؟ بنی اسرائیل قوم کا پہلا قائد موسیٰ بتایا جاتا ہے۔ اس نے ان کو مصر کی غلامی میں سے چھڑایا، اور موسیٰ کی وفات کے بعد اس کو بنی اسرائیل کا قائد بنایا گیا، اس کو بنی اسرائیل کا رہنما بنایا گیا۔ پھر اسی وجہ سے، کیونکہ اس کتاب کا مرکزی کردار جو ہے وہ یشوع خود ہے، اسی لیے اس کتاب کو یشوع کا ہی نام دیا گیا۔ اور اس نے کس طرح کی خدمات سر انجام دی، کس طرح سے وہ ان کو اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کے گیا، یہ کتاب ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ آمین۔ اور ایک چیز اور کے بارے ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یشوع کو سڈنلی لا کر سامنے کھڑا نہیں تھا کر دیا گیا کہ چلو بھائی موسیٰ جو ہے وہ وفات پا چکا ہے تو اب آپ آ جاؤ یشوع آپ لیڈرشپ کرو۔ نو وے، وہ اپنی جوانی سے ہی، کب سے؟ جب سے وہ ینگ تھا، وہ تب سے ہی موسیٰ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہوا تھا کہ کس طرح سے خداوند نے ان کو وہاں سے نکالا، مصر سے نکالا، کس طرح سے خداوند بیابان میں ان کے ساتھ رہا، اور اس پوری ینگ جنریشن میں سے صرف 2 شخص ہی جو تھے وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں آئے تھے۔ بتا سکتا ہے، ایک تو یشوع تھا اور ایک کون تھا؟ ایک کون تھا؟ شاباش۔ یہ لوگ جو تھے یہ آئے تھے۔ یشوع جو تھا اس نے بہت عرصہ لیڈرشپ موسیٰ سے سیکھتا رہا۔ یہ جب وہ موسیٰ شریعت لینے کے لیے پہاڑ پر گیا تب بھی یشوع اس کے ساتھ تھا۔ موسیٰ آ جاتا ہوتا تھا لیکن یشوع وہیں پر رہتا ہوتا تھا۔ خیمہ میں سے بھی اگر خداوند سے بات ہو رہی ہوتی تھی تو موسیٰ جو تھا وہ خیمے سے باہر آ جاتا تھا، تو ہم پڑھتے ہیں کہ یشوع خیمہ کے اندر ہی موجود رہتا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کو پھر لیڈرشپ کے لیے کھڑا کیا گیا، اور اس نے پھر لیڈرشپ کی، اور جب اس نے لیڈرشپ کی تو وہ اس وعدے کو پورا کرنے کا سبب بنا، اور وہ بنی اسرائیل قوم کو کنعان کی سرزمین میں لے کر گیا، اور بہت سی جنگیں اس رہنما نے فتح کی۔ آمین آمین آمین۔ ایک اور چیز کہ موسیٰ کی جگہ لینے سے کئی سال پہلے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے یشوع نے اپنے آپ کو مرد ایمان، مرد رویا، مرد جرت، مرد وفا اور مرد دعا اور مرد خدا اور مرد کلام کے ساتھ پیغمبرداری اور خدا کے ساتھ مضبوط عہد میں باندھا ہوا سورما خود کو ثابت کیا۔ پہلے کتنی کوالٹیز ہمیں ملتی ہیں یشوع کے کریکٹر میں کہ اس سے پہلے کہ وہ لیڈرشپ کرتا، اس نے خود کو ثابت کیا کہ وہ مرد ایمان ہے۔ جب وہ 12 جاسوس گئے جاسوسی کرنے کے لیے کہ ہم دیکھ کے آئیں کہ وہ سرزمین کیسی ہے، تو یہ 2 شخص جو تھے یہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرد رویا اور مرد جرت تھا، اس نے کہا کہ ہمارے اندر وہ پوٹینشل ہے، ہمارے اندر وہ قوت ہے کہ ہم اس علاقے کو کیا کر سکیں؟ فتح کر سکیں۔ پھر یہ مرد وفا، یہ وفادار رہا۔ پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مرد دعا بھی رہا، اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مرد خدا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مرد کلام اور کلام کی فرمانبرداری، تابعداری اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ خدا کے عہد میں مضبوطی سے بنا رہا۔ اور آج شام میں یہ تمام برکات جو اس شخصیت میں پائی جاتی تھی، میں آپ لوگوں کی لائف پر بھی پرناؤنس کرتا ہوں، آپ لوگوں کی لائف پر بھی بولتا ہوں کہ آپ بھی مرد جرت ہوں، مرد ایمان ہوں، مرد وفا ہوں، مرد دعا ہوں، اور خدا کی تابعداری میں رہنے والے آپ سب لوگ بھی ہوں۔ آمین 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 آمین۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کے کچھ
कुछ मशहूर वाकयात को देखते हैं कि ये किताब कौन कौन से वाकयात के बारे में बताती है। तो जब हम शुरू से इसको देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अबवाब में हमें केनान की फतह के बारे में पता चलता है। किस चीज के बारे में पता चलता है? केनान की फतह। किस चीज के बारे में पता चलता है? केनान की फतह। कि यहोवा बनी इसराइल की क़यादत करते हुए इनको उन तमाम जगहों पर क्या देता है? क्या दिलवाता है? पता दिलवाता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कबीलों के दरमियान जमीन तकसीम की जाती है, कि हर एक कबीले को हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बनी इसराइल कौम के कितने कबीले थे? 12। कितने कबीले थे? 12। उन 12 के 12 को स्पेसिफिक जगहें दी गई कि आप लोगों ने यहाँ पर रहना, ये आपकी मिरास है, ये आपकी मलकियत है। उसके बाद फिर कौम के लिए यहोवा की बुलाहट। फिर हमें एक और वाकया हमें नजर आता है, बड़ा मशहूर वाकया, कि राहब और जासूस के राहब के पास वो जाते हैं। वो एक बादशाह औरत होती है और वो जासूसों में से जो यहोवा भेजता है वहां पर, उनमें से कुछ को पनाह देती है और उनको हिफाजत के साथ वहां से निकालती है। और ये फिर खुदावंद के हमें आगे नजर आता है कि ये बनी इसराइल कौम के नस्ब नामे में जो थी वो शामिल हो जाती है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है यहोवा की किताब में यरीहो की जंग जो थी वो कौन जीतते हैं? कौन जीतता है? बनी इसराइल जीतते हैं। कि जब वो दीवारें बहुत लंबी होती है और ये लोग कहते हैं कि इंद्र देसी कितना पता करांगे, इसी कितना अंदर दाखिल होवांगे, तो खुदावंद कहता है कि 7 दिन आप लोगों ने क्या करना है? क्या करना है? चक्कर लगाना है। और 7वें दिन फिर क्या करना है? जोर से। और जब उन्होंने ललकारा तो क्या हुआ? दीवार गिर गए और यरीहो शहर को उन्होंने क्या किया? फतह किया। और एक और वाकया के बारे में हमें ये किताब बताती है, वो कौन सा है? अकन का गुनाह। अकन ने क्या किया? मखसूस की हुई चीजों में से क्या की थी? चोरी की थी। और उस चोरी की वजह से ये जंगों में नाकामी होना शुरू हो गई इनको। फिर यहोवा जाता है खुदावंद से पूछता है कि खुदावंद क्या बात है कि हम इस तरह से हमें नाकामियां हो रही हैं। तो फिर पूरा डाला गया, सारा सिस्टम हुआ, इसका पूरा कबीला सामने आया और फिर पूरा जो था वो अकन के नाम पर हिला, फिर अकन को सजा दी गई थी और इसके पूरे खानदान को कत्ल किया गया था। ठीक है, हमें इस चीज के और यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी मखसूस की हुई चीजों के साथ हमें छेड़छाड़, मखसूस की हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे इस किताब की तकसीम के बारे में। इस किताब को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले बाब से लेकर 12वें बाब तक हमें नजर आता है कि नाम के अहम शहरों और कस्बों पर कब्जा करने के वाकयात मदरज है पहले 12 अबवाब में। फिर हमें नजर आते हैं 13 अबवाब से लेकर 22 अबवाब तक। यहाँ पर फिर उसमें कबायली सरहदों और शहरों की फरिश्तों को शामिल किया जाता है कि किसको कितनी जगह दी गई, किसको क्या चीज दी गई, लावी के कबीले को क्या दिया गया, यहूदा के कबीले को क्या दिया गया। इस सारे सिनेरियो का हमें इन अबवाब में पता चलता है। फिर जो 23वां और 24वां बाब है, इसमें हमें नजर आता है कि लावी के लिए मुख्तलिफ लावी के कबीले को मखसूस चीजें दी गई थी, मखसूस जगहें दी गई थी, मखसूस कुछ शहरों के उन्हें मालिक बनाया गया था। ये 3 हिस्से हमें मिलते हैं इस किताब के और इस किताब के टोटल अबवाब 24 हैं। कितने अबवाब हैं? कितने हैं? और आखिरी जो अबवाब हैं 23 से लेकर 24, इसमें फिर हमें यहोवा का अलविदाई किताब और उसकी मौत के बारे में पता चलता है कि किस तरह से उसने जो अलविदाई किताब अपना किया वो हमें पता चलता है। और फिर हमें उसकी मौत के बाद सिक्कम में अहम कौमी इज्तिमाई, सिक्कम एक जगह है जिसके बारे में फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक इज्तिमा होता है, इनको इकट्ठा किया जाता है, जिसमें लोग जो थे खुदावंद को यहोवा और उसकी फरमाबरदारी करने के लिए वादा करते हैं। और मुल्क मुआदा में वो जो वादा किया हुआ मुल्क था कनान का, ये वहाँ पर फिर आबाद हो जाते हैं। अब हम इस किताब के बारे में एक आखिरी चीज देखेंगे और वो क्या है
नए अहदनामा में यीशुआ को यीशु मसीह का मसीह भी कहा जाता है कि जिस तरह से यीशुआ जो था ये बनी इस्राएल कौम को वादा की सरजमीन में लेके गया, इसको हम नए अहदनामा में इस तरह से देखते हैं कि यीशु मसीह भी हमें वादा की हुई जगह पर, यानी कि वो मकान जो वो तैयार कर रहा है, बात के हुजूर हमें लेकर जाने को आने वाला है। आमीन। जिस तरह से यीशुआ उनको मुल्के कनान में बहुत सी जंगों पर फतह पाकर उनको लेके गया वादा की हुई सरजमीन में, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह भी गुनाह की कुव्वतों पर, इब्लीस की कुव्वतों पर और खुद इब्लीस को हरा कर वो हमें कहां पे लेके जाएंगे? आसमान की बादशाही में वो हमें क्या करेंगे? लेके जाएंगे। आमीन। अब हम चलेंगे एक दूसरी किताब की तरफ।